all. Yesterday we had our first session of talk show. We are happy. Those who missed it yesterday can soon be able to watch it on Cobalt's website and Facebook page. We are really happy to see a response yesterday for our first session. I am grateful to Ms. Sunaina Kejriwal, Director of Colonial Bajaj Art Gallery, for showing faith in Cobalt Arts. Our next art talk shows and discussion will happen in the collaboration with Colonial Bajaj Art Gallery. I am happy to announce Cobalt Arts' new initiative SAMVAAD, which will include art talks, discussion on art walks, studio visits and many more. Next month we are planning art walk. Information regarding this activity will be available on our website and Facebook page. So please do visit our Facebook page and website. Today is the second session of SAMVAAD. We are thankful to Mr. Ashok Bhowmick for accepting our invitation for our first talk show. As we all know that Ashok Bhowmick is a very renowned artist and his contribution to the field of art is very significant. You can view his work on the screen. Today he is going to talk on the topic, the relevance of Rabindranath Tagore in Indian art. Since last 4 decades, he has been known for uniqueness of his paintings and also known as a master of cross-hatching technique. Beside the complex rendering, his paintings remain simple and uncomplicated. I am just showing a slideshow of his painting, so please enjoy his paintings. This is his famous character Amina and her bird. So I would like to invite Mr. Ashok Bhowmick to the stage. Please. Quite an interesting session on the subject about the history and the problematics of Indian art. आज जो subject हमने select किया है जिसके ऊपर बात करेंगे, it's about Tagore's painting and his relevance in today's art. Before I start, I would like to make it very clear कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये उस रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं है जिनको नोबेल प्राइज मिला था कविता के लिए, पोएट्री के लिए। ये उस रविन्द्रनाथ की बात भी नहीं है जो कि नॉवेलिस्ट थे, जो राइटर थे, जो थिएटर पर्सन थे। ये प्योरली उस टैगोर के बारे में बात है जो कि एक पेंटर थे। And I consider him as a complete painter and one of the first modern Indian painter. हालांकि मैं इस पे यकीन नहीं करता कि ये पर्टिकुलर डेट से फर्स्ट मॉडर्न शुरू होता है उसके फॉलोड बाय सेकंड एंड थर्ड मॉडर्न, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज कोई भी आर्टिस्ट अपने हिस्ट्री के स्पैन में इंडिपेंडेंट नहीं होता। द वे वी मीन इंडिपेंडेंट, वो अपने पास्ट को साथ लेके चलता है, प्रेजेंट में जीता है और फ्यूचर को चैलेंज करता है।
तो दैट कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग टैगोर के बारे में बात करते हुए उस कंटिन्यूटी को भी देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली टैगोर इनहेरिटेड फ्रॉम हिज ओन पास्ट। और जब हम कहते हैं कि टैगोर वाज एन इंडियन आर्ट, वंस अगेन जैसा कल हमने बात किया था, हमने क्वेश्चन किया था द वर्ड इंडियन, हाउ फार इट इज इंडियन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन टैगोर, and it is more about his art, as I said, and I hope that you will all like his work, because probably you have not seen so many work at a time, the number of work I am going to show. So we know the various stages of Indian art, but I will not go to very back in the history. हम शुरू करते हैं जहाँ पे मुगल आर्ट खत्म होता है। We know the Mughal art. Yesterday also we said कि सब मुगल आर्ट में जो है ये वर्टिकल पेंटिंग होता था, बिकॉज इट इज वॉज ए टेक्स्ट, एक इलस्ट्रेटेड वो है जहाँ पे लेफ्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ, राइट में इमेज है। सो इलस्ट्रेशन जो है, जिसे हम कहते हैं कि एक टेक्स्ट है उसमें जो कुछ भी लिखा है उसको मैंने पेंटिंग में उतारा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन आर्ट एट दैट टाइम। पर मुगल के बाद जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में आते हैं, कई आर्टिस्ट आते हैं, डेनियल आते हैं, उन लोगों के पेंटिंग में कुछ चीज नई चीज घटित होती है। जैसे वी हैव नेवर सीन कि इंडियन आर्ट में किसी आर्किटेक्चर का बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का एक्सक्लूसिव कोई पेंटिंग, अगर है भी तो वो देखिए वो किसी चीज के बैकग्राउंड में है। जैसे वी हैव नॉट सीन एनी लैंडस्केप इन इंडियन आर्ट, वी डोंट फाइंड एनी लैंडस्केप एज अ प्योर लैंडस्केप। हाँ, बीजापुर के चांद बीबी के बैकग्राउंड में लैंडस्केप दिखे, दैट्स अ पॉइंट असाइड, अदरवाइज लैंडस्केप आपको नहीं दिखता। जैसे पूरे कैनवस के बीच में, पूरे पेंटिंग के बीच में एक सॉलिटरी बर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। आई मीन द बर्ड बीइंग द हीरो और द सेंटर फिगर ऑफ अ पेंटिंग, ये हमें नहीं दिखाई पड़ता, बिकॉज दैट एरिया जो सेंटर एरिया है पेंटिंग का, वो राजा रानी या देवी देवता इन लोग घेरे रहते थे, बिकॉज द बर्ड के पास कोई चांस नहीं था कि वो पेंटिंग में आता। इसी तरह फ्लावर्स, वी हैव नॉट सीन एनी फ्लावर इन इंडियन आर्ट एज ए इंडिपेंडेंट मोटिव इन द पेंटिंग। उसमें राजा जरूर उसको स्मेल करना वो सब है, पर एज सच फ्लावर एक सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी नहीं देखा। पर अंग्रेजों के आने के बाद जो कंपनी आर्ट है उसमें हम देख पाते हैं इन सब चीजों। हालांकि ये बात क्वेश्चनेबल है कि वेदर दे वर आर्ट वर्क और a painting done for a different purpose. Actually what happened, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उसमें कुछ आर्ट लवर्स भी थे, उन्होंने लोकल आर्टिस्ट को हायर किया और बोले कि ये जो बैट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो टिपिकल इंडियन है, उसको आप लोग बनाइए। तो होता ही था कि उसके बाद जब इंडिया में जो लोग यूरोप से आते थे जॉब में, they were given those pictures, तो उनको आइडिया लगता था कि कौन सा स्नेक कैसा होता है, कौन सा फ्लावर कैसा होता है, कौन सा बर्ड उसका नाम क्या है। इस तरह से मैंने देखा, जो अगर हिस्ट्री को आप ट्रेस करेंगे, टिल द अराइवल ऑफ फोटोग्राफी इन 1848, कंपनी आर्ट अपने एक हाइट पे जाता है। पर देन अगेन कंपनी आर्ट को आर्ट कहें या ना कहें, ये भी एक सवाल है। विजुअली दे लुक लाइक आर्ट। उन्होंने ओपेक कलर यूज किए, उन्होंने अच्छे पेपर इस्तेमाल किए which was provided by those Britishers। जो उन्होंने बनाए वो जो अंग्रेज ऑफिसर्स ने जैसा कहा उन्होंने वैसे बनाया। यहाँ दो बातें हैं कि अपार्ट फ्रॉम हायरिंग इंडियन आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट, कई आर्टिस्ट ऐसे थे जो कि इंग्लैंड से चल के स्पेशल असाइनमेंट में इंडिया में आए थे, कि टॉमस डेनियल, जिसमें भी एक बहुत फेमस नाम है। ये वर्क टॉमस डेनियल का है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह का वर्क इंडियन आर्ट में एज ए सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, एज ए सब्जेक्ट ये हमें कम दिखाई पड़ता है। एक आगरा फोर्ट के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ सोल्जर्स खड़े हैं, कुछ किंग हैं, ये सब तो दिखाई पड़ता है, पर इंडिपेंडेंटली नहीं दिखाई पड़ता है। और इसमें रेशियो दिखाने के लिए सामने अगर कभी एक एलिफेंट भी है तो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर टू शो द रेशियो, ये बिल्डिंग कितना बड़ा है एलिफेंट के, नॉन एलिफेंट के साइज का, बिकॉज इन सब पेंटिंग का यूरोप में बहुत डिमांड था।
इसलिए भी डिमांड था बिकॉज यूरोपियन आई मीन ब्रिटिशर्स वो इंडिया को अपना एक वो मानते थे, तो वहाँ से कैसे क्या होता है, दे वांटेड टू नो ऑल दिस थिंग, ये कहाँ पे क्या है, कैसा बिल्डिंग है, कैसे एनिमल्स हैं, इन सब चीज़ों को जानना वो चाहते थे. स्पेशली आफ्टर 1857 many cities came into the news, like मेरठ, like कानपुर, like लखनऊ, जहाँ म्यूटनी हुआ था. There was a great deal of demand कि मेरठ के बारे में कुछ नए पेंटिंग आए हैं. वो इंग्लैंड में सोसाइटी में इट वाज इन डिमांड कि भाई मेरठ की पेंटिंग मेरे पास आई है, कोई आगरा की पेंटिंग आई है, कोई कानपुर की पेंटिंग आई है. बट देन अगेन दे वर जस्ट लाइक पिक्चर पोस्टकार्ड. जो पर्पज आज पिक्चर पोस्टकार्ड सर्व करता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते थे. तो दैट्स हाउ कंपनी आर्ट आगे बढ़ता है विद सम डेफिनेट गुडनेस. एक तो ये कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पेंटिंग के सब्जेक्ट हमारे पेंटिंग में आते हैं, और दूसरी बहुत बड़ी बात कि आर्ट जो एक कम्युनिटी एक्टिविटी था कि 5 आर्टिस्ट बैठे, एक ने भीड़ बना दिया जो मुगल आर्ट में था, एक ने फेस बना दिया उसी पेंटिंग का, एक ने टर्बन्स बना दिए, एक ने बैकड्रॉप बना दिया, और एक ने वो स्क्रिप्ट लिख दिया. तो 5-6 लोग मिलकर एक पेज को डेवलप कर रहे हैं. पर वहां से हट के एक इंडिविजुअल का वर्क ऑफ आर्ट, ये हमें कंपनी आर्ट में दिखाई पड़ता है. नॉट ओनली दैट, लेडी इम्प्रे इन 1780 शी हायर्ड फ्यू आर्टिस्ट फ्रॉम पटना एंड कलकत्ता. उन्होंने भी बहुत सारे पेंटिंग बनवाए. दैट वाज पॉसिबली द फर्स्ट टाइम जब क्लियरली वहां पे सिग्नेचर दिखता है आर्टिस्ट. बिफोर दैट देयर वाज नो सिग्नेचर. सो वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन कि वो पेंट क्राफ्ट था या आर्ट था. बिकॉज वेस्टर्न आर्ट में बहुत दिनों पहले से साइन करते थे. सो साइनिंग इज नॉट बैड, बिकॉज जब आप पेंटिंग को साइन करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यू बिकम मोर अकाउंटेबल. लोग पसंद भी कर सकते हैं, नहीं पसंद कर सकते. बहरहाल विद दैट गुड थिंग अबाउट द कंपनी आर्ट हम देख पाते हैं कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स के उन्होंने पेंटिंग बनाए जो ऐसे रिकॉर्ड गए. कुछ फ्लावर्स, कुछ वेजिटेशंस. और इसके बाद जो हम देखते हैं कि ये जो 1848 जब फोटोग्राफी आ जाता है, तो हम उस हिंदुस्तान को देखें जिसके बारे में हम कहते हैं कि टैगोर वाज ए इंडियन. वी टॉक अबाउट द इंडियन आर्टिस्ट, द इंडियननेस ऑफ आर्ट. मैं खाली 2-3 चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि 1848, because Tagore was born in 1861. 1861 में what was the situation of India, quote unquote. इंडिया में जो ऑन रिकॉर्ड मिलता है कि we find 80 independent states. इतना इंडिपेंडेंट कि 80 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अपने करेंसी. So now we know very well about the currency because we are passing through a different phase right today. Currency 80 states के पास अपने करेंसी थे, and they are like बड़ौदा, बूंदी, and it went up to 1947. Before the independence हमें 80 states के इंडिपेंडेंट करेंसी मिलता है. जब इंडिपेंडेंट करेंसी मिलता है तो you can imagine उस आर्ट का भी क्या होगा. So this Indian art is a possible definition given by a name given by the Britishers for their convenience. जब पेंटिंग में नया दौर आता है, that was 1901-2-3. स्पेशल थिंग इन बंगाल that happens कि वहाँ पे एक बंगाल स्कूल के नाम पे एक नया आर्ट डेवलप करता है. फॉर्चुनेटली जो वो दौर था, there were some good artists, they were there in Bengal. उन लोग काम कर रहे थे. One of them was Rabindranath Tagore and Rabindranath Tagore and other painters also. I will show their work. This is Rabindranath Tagore's Journey's End, and this is Rabindranath Tagore, the brother of Rabindranath Tagore. And again, this is Rabindranath Tagore. But what happened that time in 1907, एक संस्था बनती है, इसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट.
ये बहुत ही एक बेनाइन लुकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है कि ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई कि इंडियन आर्ट क्या होगा, ओरिएंटल आर्ट क्या होगा, इसके बारे में कुछ काम किया जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कैलकाटा, क्योंकि दैट वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो जो हम कलकत्ते में करेंगे उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा, एज इफ दैट वाज द कॉमन नोशन। आज अभी बात हो रही थी अरविंद जी से कि 3 प्रेसिडेंसीज थे, एक कैलकाटा, एक चेन्नई, एक बॉम्बे। जो आर्ट कैलकाटा में डेवलप किया, जो बंगाल स्कूल था, वो एक्चुअली ही वांटेड टू से इट इज नॉट बंगाल स्कूल, इट इज इंडियन स्कूल। और इंडियन स्कूल का जो इफेक्ट था वो डिफरेंट आर्ट कॉलेजेस में उन्होंने उन टीचर्स को प्रोड्यूस किया और भेजा, और डिफरेंट आर्ट्स कॉलेज में जो आर्ट डेवलप किया वो एक्चुअली बंगाल स्कूल का ऑफशूट था, जो लखनऊ में, पटना में जो हम देखने को मिलता है, इवन इन लाहौर, जयपुर, everywhere we find the influence of Bengal art. The point is that when we talk about Indian Society of Oriental Art, जो 1907 में बना, इसके फाउंडर्स का नाम जरा हम लोग देख लें कि कौन थे वो जिन्होंने इनको बनाया, और सेकेंडली क्यों बनाया। Because 1907 is very important, because all you know 1904 जो है वो डिवीजन ऑफ बंगाल है। जब लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन के बेस पे बंगाल को 2 डिवाइड कर दिया। 1904 में बंगाल वाज डिवाइडेड into 2 parts, which is today the Bangladesh and West Bengal. तो इस मूव के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चला इन लिटरेचर, उनका ये था कि नो, देयर शुड नॉट बी अ डिवीजन। तो रेजिस्टेंस उन्होंने दिया, पर पेंटिंग में दे वेंट टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि आर्ट को, इंडियन आर्ट को हिंदू आर्ट में कन्वर्ट करने की एक प्लान की गई। इस प्लानिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, जिनका नाम आप देख ही पा रहे हैं, बिकॉज नथिंग लेस देन लॉर्ड किचनर, अर्ल्स ऑफ रोनाल्डे, महाराजा ऑफ नाटौर and Maharaja of Bardhaman, and Tagore of Jorasaco, Sister Nivedita, Anand Kumar Swami. You won't find any name of a common man. You won't find any name from man belonging to Lucknow, Kanpur, or Bombay, or Delhi, or any other place. तो इसका पूरा पर्पस ये था कि इंडियन आर्ट को एक हिंदू आर्ट में कन्वर्ट करें। तो कहने की बात नहीं है। I want to show you the work जो इस ग्रुप के ओरिएंटल सोसाइटी के जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने काम किया। There is a famous painting of Rabindranath Tagore, भारत माता। Now भारत माता was made as a god, एक भगवान की जैसे 4 भुजाएं हैं, एक में विद्या है, एक में वस्त्र है, एक में अन्न है, एक में अध्यात्म है। It's a totally Hindu god. ऐसे भारत belongs to only Hindus. This is 1905. एंड सिस्टर निवेदिता, उनका ये कहना था कि अगर मेरे पास रिसोर्सेस होते तो इसकी पेंटिंग के रिप्रोडक्शन बना के हिंदुस्तान के हर किसान के घर में मैं भेजती। जो पूरा जो डिजाइन है उसको समझने की जरूरत है। वाई हिंदुस्तान का हर किसान क्या हिंदू है? जो उसके घर में भारत माता की तस्वीर जाएगी, एंड योर इंटरप्रिटेशन अबाउट भारत माता इज अ गेरुआ कपड़ा पहने हुए एक देवी। एंड इफ यू गो फर्दर, असित कुमार हालदार इसी समय पेंटिंग कर रहे हैं, जो जितने भी हमारे पुराण कथाएं हैं उससे कैरेक्टर ला ला के पेंटिंग कर रहे हैं, और उसी इलस्ट्रेशन को वो कह रहे हैं कि दीज आर द पेंटिंग्स, दीज आर द मॉडर्न, न्यू मॉडर्न पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल। एक नया स्कूल हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आप बार बार घूम के देखेंगे कि जिसको कि दुर्जटी प्रसाद मुखोपाध्याय, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए, क्रिटिक हुए हैं, आर्ट लवर में, उन्होंने कहा, कोट एंड कोट, उन्होंने कहा कि इस समय की पेंटिंग को देख के लगता है कि ऊपर से, स्वर्ग से तमाम देवी देवता उतर के बंगाल में आ गए हैं, एंड they have selected their own ways. Somebody picked up Lakshmi, some Ganesha, some Buddha, like that. और इसलिए हम देखते हैं कि एक एक आर्टिस्ट they are actually devoted themselves to one single god, one single epic. इस तरह से एक आर्ट फॉर्म होता रहा।
इस समय हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान में और कोई रहता था. It was only a Hindu word that was coming out. I am talking about the background. खाली background नहीं, very consciously. 1907 का मतलब ये हुआ कि 1861 में जो पैदा होते हैं वो सबसे उस समय पूरी तरह matured है. Is very active. Tagore was very active in poetry, very active in literature, but he never participated in this kind of art. There is the work of Venkatappa, Lanka Dahan, and this is again Venkatappa's work, who went to Calcutta from south, and this is Rabindranath Tagore. All you find that in every work of art, there is a story of God and nothing less. And here we find the arrival of Rabindranath Tagore. That was around 1928 when he had his first one-man show in Shantiniketan. 1928 के पहले जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, 1924 में वो अर्जेंटीना गए थे, पेरू गए थे. उसके पहले उन्होंने 1912 के आसपास हमें रिकॉर्ड मिलता है कि he was practicing some art, but वो सीरियसली कोई काम नहीं कर रहे थे पेंटिंग का. और उनके लेटर्स जो हैं मैं स्कैन करें तो हमें मिलता है कि उनको पेंटिंग के बारे में बहुत दिलचस्पी है. एंड ही सेड दैट मेरे इस एज में आके आई कैन नॉट स्टार्ट पेंटिंग बिकॉज दैट रिक्वायर्स मोर लेबर. वो मेरे इस उम्र में मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं करूँ. ये उस समय टैगोर वाज नॉट इवन 30. ही थॉट दैट एकदम बचपन से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेंटिंग नहीं बन पाएगी. टैगोर ने अपने वर्क से इस कॉन्सेप्ट को तोड़ा है. So we'll talk about that part later of this lecture. But let us start with the art of Rabindranath Tagore. And before we go to his painting, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि टैगोर ने इस बात से that we have a better knowledge of literature relatively. That is because the vehicle of literature is language, which again is dependent on meaning, but lines and colors have no voice. Yesterday we almost heard the noise of lines and colors. हमने बहुत कल बात की कि कितना शोर है, कितनी कहानियां हैं. क्योंकि कहानी कहने का जो है, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन नहीं करते. जब कोई कहता है कि राम कथा को पेंटिंग कीजिए, इट हैज अ इंटेंशन बिहाइंड इट. सो टैगोर उसको बिल्कुल किनारे करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमें लिटरेचर के बारे में ज्यादा नॉलेज है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पोएट्री के साथ एक और वर्ड जोड़ना पड़ता है, जैसे हिंदी पोएट्री, जैसे मराठी पोएट्री, जैसे इंग्लिश पोएट्री, बिकॉज ये लैंग्वेज का फर्क है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट पेंटिंग में मराठी पेंटिंग नहीं हो सकता, आपका बंगाली पेंटिंग नहीं हो सकता है, हिंदी पेंटिंग नहीं हो सकता, बिकॉज इट हैज गॉट नो वॉइस. टैगोर के सब पेंटिंग देखते समय अगर हम इस चीज को याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा. Now you see, yesterday we talked about the arrival of common man in Indian painting. This is a common man, जो कि 4,500 साल के हिस्ट्री में इंडियन आर्ट में we don't find the existence of common man. और टैगोर की पेंटिंग में we don't find any existence of lord and king and queens and any god. This is the resistance we find in his work. ये प्रतिरोध है, ये कला का प्रतिरोध है, बिना समझ के नहीं है. बहुत समझने के बाद टैगोर जब पेंटिंग में आते हैं तो एक भी पेंटिंग में वो किसी राजा रानी को दिखाते नहीं, किसी हीरो नहीं बनाते, किसी को नायक नहीं बनाते, किसी को, जैसे अगर आप उनकी कहानी को देखेंगे, उनके नाटक को देखेंगे, चित्रांगदा अगर है तो चित्रांगदा एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो पेंटिंग में आते, जो नाटक में आते हैं. जैसे कृष्णकली एक कविता का शीर्षक भी है और वो दैट पोएम इज ऑल अबाउट कृष्णकली, ए गर्ल, डार्क कॉम्पिटिशन गर्ल. पर किसी भी पेंटिंग को उन्होंने टाइटल नहीं दिया, क्योंकि टाइटल देने की जरूरत भी नहीं है. पेंटिंग में जब वो कहते हैं कि आगे मैं बताऊंगा कि वो ये इज नॉट टू एक्सप्रेस, एक्चुअली द पेंटिंग्स आर मेंट टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, नॉट टू एक्सप्लेन.
ये बहुत खासियत है कि वो एक्सप्लेन नहीं करना कि व्हाई आई एम देयर इन द कैनवस, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओनली एक्सप्रेस करना है, यू हैव टू फील इट. When we use the word understand, that I understand your painting or I don't understand his painting, this particular word understand has got its own limitation. हमारी भाषा की शक्ति इतनी कम है कि हमारे पास शब्द नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग इन व्हाट कंटेक्स्ट, वेदर इट इज विद लिटरेचर और ये पेंटिंग के साथ है. बिकॉज पेंटिंग में अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं होता है the way we understand story. पेंटिंग में फील करना पड़ेगा. एक पेंटिंग ये टैगोर शुरू करते हैं. मैंने इसलिए इसके पहले की जो रेफरेंस दिए थे वहां पे यही बताना कि किस हद तक वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, हिस्ट्री से अपने को काट के आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज अ वंडरफुल पेंटिंग ऑफ टैगोर जिसमें कि नए वर्क का एक्सपेरिमेंटेशन दिखाई पड़ता है. द डार्क बैकग्राउंड and very colorful dress. सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कंटिन्यूटी. ये पेंटिंग 1928 में बनी, ऑलमोस्ट 100 years back. आज भी अगर आप किसी विलेज में चले जाएंगे, possibly you can see the same thing. And you don't know the name of these girls. You don't know whether they belong to Maharashtra or Uttar Pradesh or any other place. But we know them. नाम नहीं जानते, जगह नहीं जानते, हम उनको पहचानते हैं, हमने इनको देखा है. तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टैगोर. टैगोर की पेंटिंग को मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए और अपनी बात को रखने के लिए कुछ पार्ट में डिवीजन किया है. फर्स्ट इज इरेजर्स. जब वो पोएट्री लिखते थे, जब अपने पोएम्स लिखते थे, तो लिखने के बाद जब वो करेक्शन करते थे तो उसमें जहाँ पे जो वर्ड अनडिजायरेबल है, जिनकी जरूरत नहीं, उसको काट देते थे. काटने के बाद वो जो कटे हुए जगहों को मिलाते थे, एक फॉर्मेशन देते थे जो एक इंडिपेंडेंट पेंटिंग जैसा लगता है. नाउ जितने भी आर्ट क्रिटिक हैं, उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि वो इट वाज अ साइमल्टेनियस एक्ट, कि वो काटते काटते पेंटिंग बना डालते थे. पर मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ आर्ट, मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबली इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें दैट एक आर्टिस्ट एक कैनवस को ले रहा है, उसमें एक आर्ट फॉर्म कंप्लीट कर रहा है, दैट इज पोएट्री. एक पोएम को पूरा कंप्लीट कर रहा है, बीच में काट भी रहा है. आफ्टर ही हैज फिनिश्ड इट, जो कटे जोड़ते हुए दूसरा आर्ट फॉर्म शुरू कर रहा है, दैट इज पेंटिंग. इट इज नॉट, इट कांट बी अ साइमल्टेनियस एक्ट, बिकॉज इन पोएट्री you have to arrive to the last word of a poem to say that yes, it is finished now. In any case, आप बीच में नहीं शुरू कर सकते, because उनका composition बताता है कि उनका जो पेंटिंग पोर्शन है वो कितना कंप्लीट है. मैं आने वाले 2 स्लाइड्स से आपको दिखा रहा हूँ कि दिस इज अ पोएम, द बॉडी ऑफ ए पोएम, जिसमें कटे हुए पोर्शन ज्यादा है. पोएट्री कम रह गई है, कटे हुए पोर्शन ज्यादा है. इट इज very understandable जिस तरह से बना है. But you can see, if we delete the portion of the poem, it's an independent painting. इससे, और ये पेंटिंग जो है, you cannot do without finishing the poem, because last जो लाइन है, लास्ट वर्ड के लाइन के लास्ट वर्ड से भी ये शुरू होता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंटली ये एक पेंटिंग है जिसमें कि वो शायद वो पीरियड था जो पेंटिंग के बारे में सोच रहे थे, पेंटिंग कैसे हो सकता है. इसका दूसरा जो एस्पेक्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस फिगर के साथ इस पोएम का कोई रिलेशन नहीं. अगेन इसे जो मैं कह रहा हूं आपसे कि 2 इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, जो एक के खत्म होने के बाद दूसरा इंडिपेंडेंटली आता है, विदाउट टेकिंग एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अर्लियर आर्ट. और इसलिए टैगोर का ये पेंटिंग जो सीरीज है, जो वर्क है, आई फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ. इसमें देखिए कि लाइन नहीं, मतलब वर्ड्स बचे ही नहीं है और पूरा फिगर आ जाता है. और इसमें तो एक भी वर्ड नहीं बचता. पूरा पोएम जो है उन्होंने बरी कर दिया. उन्होंने लाइंस के नीचे वो जो वर्ड्स हैं जो पसंद नहीं थे, उनको दफना दिया. एक्चुअली ही सेड दैट कि मैं उन्हें दफना दिया, and in a decent way. और
This is one of the very rare kind of erasure because we find the use of color also. Usually जिस पेन से वो पेंटिंग करते थे उसी पेन से लिखते थे कविता, उसी पेन से वो पेंटिंग भी करते थे. पर इसमें हम देखते हैं कि वो पोएम जो है वो ब्लैक पेन से लिखा गया है, पर इरेजर जो उन्होंने फिगर बनाया है उसमें उन्होंने रेड कलर भी यूज किया है टू इंड्यूस एन डायमेंशन टू हिज पेंटिंग. इसको भी हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट पेंटिंग इसका क्या लुक है. आई थिंक इट इज क्वाइट अ मॉडर्न, और इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं. इट इज वर्क टू बी फेल्ट. There is again a very interesting quote from Tagore. People often ask me about the meaning of my pictures. Yesterday we were talking about the meaning of the painting and why the people try to give meaning of the painting and what are the intentions to offer a meaning of the painting. People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent even as my pictures are. It is for them to express and not to explain. They have nothing ulterior behind their own appearance, for the thoughts to explore and words to describe. Yesterday we saw the words of noted critics of India today, and we found so many words to describe the painting. तो जिस रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे थे, when Tagore took up painting in 1907 and 13, around that time, he was resisting against the contemporary art scene of that time, and today also we find that he is resisting against the today's world scene. The way art critics and art dealers and art managers, they are out to hijack the painting, hijack this art. If we read Tagore, if we understand Tagore, we find that he is really putting up a resistance. And we will now see some works of Tagore in landscapes. These are the landscape, very casual. But then again, as I said, कि हिंदुस्तान की कला में लैंडस्केप नहीं था, जबकि यूरोप में लैंडस्केप एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है. अगेन यूरोप के लैंडस्केप से टैगोर के लैंडस्केप में डिफरेंस ये है कि यूरोप में लैंडस्केपिंग जो है यूजुअली दो तरह के हुए. एक तो संडे आर्टिस्ट, वो लोग गए एक जगह गए लैंडस्केप बनाए, और दूसरा एक पीरियड था जबकि लैंडस्केप का मतलब ये था कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हार्वेस्टिंग हुआ है. आई विल हायर एन आर्टिस्ट कि आप इसको बना दीजिए पेंटिंग, बिकॉज आई ओन दिस प्रॉपर्टी, दिस इज लैंडेड प्रॉपर्टी, ये फार्म है. तो ऐसे भी लैंडस्केप बने. बट टैगोर के लैंडस्केप क्या है, जब हम इसको डेटिंग देखते हैं, इसका जगह देखते हैं, से ही विजिटेड शांतिनिकेतन से 1 month back, and after 1 month, when he is in Almora, he is painting that landscape from his memory. So it's a difference because landscape for him is a pure composition. So you can see the strength of the composition when you focus on the sky of these landscapes. You can see the 2 patches of sky. It's a wonderful landscape, and that's so meaningful. If you avoid that space, then it will give a different kind of feel. It is as if the silhouette, the trees and other things, they are entrapping the sky. In this particular landscape, you can see the influence of Japanese art, and this is pure drawing. This again, I mean, these landscapes, you can see that they are devoid of. इसमें कोई human presence नहीं दिखाई देता है, कोई animal नहीं दिखाई देता है. जबकि शांतिनिकेतन में जहाँ वो थे, उसके आसपास का इलाका आज भी काफी हद तक ऐसा ही बना हुआ है जैसा उन्होंने देखा था. और इसके बाद हम स्टेज चले आते पोर्ट्रेट टैगोर के पास बहुत बड़ा एक जखीरा इसे कहा जाएगा. बहुत बड़ी तादाद में उनके पास पोर्ट्रेट है. बट द क्वेश्चन इज द पोर्ट्रेट का मतलब क्या है. हमने इंडियन आर्ट में पोर्ट्रेट का क्या मतलब समझा. पोर्ट्रेट का मतलब है कि वाजिद अली शाह का.
पोर्ट्रेट का मतलब है कि फला राजा का पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में सबसे बड़ी बात है कि किसका पोर्ट्रेट, दैट वाज मोर मीनिंगफुल। क्या पोर्ट्रेट है ये इंपॉर्टेंट नहीं, उस पोर्ट्रेट का फीचर क्या है देखने की जरूरत नहीं। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ किंग ऑफ अवध। अब उस पोर्ट्रेट में अवध के किंग का पोर्ट्रेट देखते हैं, नॉट द फैक्ट दैट वी आर लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट। हम लोग पोर्ट्रेट के साथ एक रेफरेंस जोड़ रहे हैं कि ये फला राजा का पोर्ट्रेट है, ये फला देवता का पोर्ट्रेट। नाउ वी विल गो थ्रू दोस पोर्ट्रेट जिसमें कि किसी भी का कैरेक्टर हम लोग को नहीं पता है। ऑल्दो दिस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट you can see the formation of eyes and lip, it will definitely remind you the paintings of Ajanta. But other than this, अरे में आपको लगता है कि कोई चीज नया कुछ करने की कोई मेमोरी से कहीं से वो खोज के कैरेक्टर निकाल रहे, जैसे थिएटर में प्ले लिखते समय एक कैरेक्टर को बिल्डअप करते हैं, उसी तरह एक पोर्ट्रेट को बिल्डअप करते समय वो उसके कैरेक्टर्स को एसोसिएट कर रहे हैं। और उसको करते समय यूजुअली देयर आर सर्टेन सैड पोर्ट्रेट्स आल्सो, आपको कुछ कॉमिकल भी लगेंगे। वी विल गो थ्रू दोस पोर्ट्रेट्स आल्सो। दिस इज वन ऑफ दोस कॉमिकल पोर्ट्रेट। एट द सेम टाइम जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट फ्रेंड बैठे हैं और आर्ट लवर्स भी, दे नो दैट पोर्ट्रेट का एक स्ट्रिक्ट कॉम्पोजिशन होता है कि उसके सर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, उसके लेफ्ट एंड राइट में स्पेस होना चाहिए। जो आपका आधार कार्ड का जो तस्वीर है जो बहुत खूबसूरत नहीं है, वो दैट इज द आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ पोर्ट्रेट। पर टैगोर की पेंटिंग में ऐसा लगता है कि उन्होंने पेपर कितना बड़ा है इसको बगैर सोचे उन्होंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। दैट्स व्हाई वी फाइंड कि सर जो है वो पोर्ट्रेट के लिमिट के बाहर चला जाता है। एंड विद दैट थिंग वी फाइंड दैट एज इफ समवन इज पीपिंग थ्रू द विंडो, कोई खिड़की कैसे हमें अंदर झांक। So this is all about composition because Tagore has never said कि मैंने इसलिए बनाया है। But when we see that portrait, it is unusual because वो space का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं, वो start कर रहे हैं और पूरे freedom के साथ वो बना रहे हैं, but ये incomplete नहीं लगता। जो Tagore का कहना है कि good paintings, फिर कभी भी अगर कोई अच्छी painting का definition होगा वो होगा complete painting। The moment you look at the painting, आपको लगेगा नहीं इसमें और कुछ करने का नहीं, वही डेफिनेशन है अच्छी पेंटिंग का। आप देखिए कितने तरह के वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट है उनके, कभी ब्रश से, और जो लोग पेंटिंग रेगुलर करते हैं उनको पता है। जैसे इस पेंटिंग में भी कोई अनइवन सूखा हुआ ब्रश उन्होंने इस्तेमाल किया है तो अनइवन लाइंस भी दिखाई पड़ती है। दिस इज वेरी बोल्ड। ये सेल्फ पोर्ट्रेट, टैगोर के इतने सेल्फ पोर्ट्रेट है वो उनके फोटोग्राफ्स को देख के उन्होंने बनाया था। इस जो मैं सैड की बात कर रहा था, इस पोर्ट्रेट में मुझे लगता है कि बहुत एक पेंसिव मूड लगता है। I have just picked up very few of portraits because उनके प्रेफरेंस बहुत हैं, पर ये पर्टिकुलर जो पोर्ट्रेट है इसमें खासियत ये लगती है कि 20th सेंचुरी इंडिया का फॉर्मेशन में जो क्लास सामने आ रहा था कि पढ़ी लिखी घर से बाहर निकलने वाली जो लड़कियां थी, इस लड़की इस पोर्ट्रेट को देख के मुझे उसकी याद आती कि वो क्लास जो इमर्ज कर रहा था, जो सदियों से अपने घर के अंदर बंद थे, वो आ रहे थे। यू कैन सी द कॉन्फिडेंस विदाउट नोइंग द नेम ऑफ दिस गर्ल or lady, without knowing the reference, it is very clear कि वो confidence इनमें है। और and now we come to the stage and the performance. Stage जो poet या जो playwright इतने सारे नाटक लिखता है, हमें सबसे आश्चर्य होता है कि जब वो पेंटिंग करते हैं तो वो जिन नाटक के सीन जैसे लगते हैं बनाते हैं वो कोई नोन नाटक नहीं। इवन वो पेंटिंग से अपने प्लेस के रेफरेंस को भी हटा देते हैं। वो पेंटिंग में एक नया नाटक क्रिएट करते हैं, जैसे हम देखेंगे। जैसे इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, इट इज क्वाइट ए ज्योमेट्रिक काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जो लगता है कि स्टेज का बैकड्रॉप का कोई डिजाइन शायद वो बना है, पर वी डोंट नो।
बिकॉज कोई नोन प्ले के साथ भी एसोसिएट नहीं हो पाता है। इस पेंटिंग की जो ब्यूटी है वी विल डिस्कस लेटर पार्ट ऑफ दिस टॉक। इसमें जरूर एक ड्रामा दिखाई पड़ता है कि आप एक तरफ देखेंगे एक कोई डोर्स पे खड़ा हुआ है हाथ में लैंप लेके एंड समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द अदर रूम। सबसे इंटरेस्टिंग है स्काई का एक छोटा सा पोर्शन लाइटेड है और बाकी क्यों डार्क है ये नहीं समझ में आता है। एक छोटा सा पैच है दैट इज प्रोबेबली बैलेंसिंग द होल पेंटिंग। बहुत वन ऑफ द मेरे लिए बहुत पसंदीदा पेंटिंग है because many things are happening inside once you see the painting। इसको आप एक्सप्लोर करते चले जाते हैं कि कमरे के अंदर कुछ हो रहा है, कोई लाइट के बाहर खड़ा है, कोई वेट कर रहा है। मतलब कहने का कि एवरीथिंग इज सो ड्रामेटिक इन ए पेंटिंग, वो इस तरह से ड्रामा को क्रिएट कर। एक बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग है कि जिस तरह से एक थिएटर में एक परफॉर्मेंस में आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं 1 2 3 4, कोई किंग है, कोई क्वीन है, कोई इस तरह से इंडिविजुअली अगर आप एक कैरेक्टर को देखेंगे दैट इज मोर नियर टू द पोर्ट्रेट ऑफ ए पेंटिंग। वेयरएज एक जो प्ले का परफॉर्मेंस है वो आपको एक ग्रुप का, जैसे इफ यू रिमेंबर द लास्ट सपर, इट्स अ परफॉर्मेंस विद सो मेनी पीपल अराउंड। पर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट इस तरह के होते हैं कि एक पोर्ट्रेट में एक चीज दिखाई पड़ रहा। दे आर द एक्टर्स, दे आर लाइक एक्टर ऑफ अ scene or a play. Now here we find two, here we find another two, इसके बाद दो और देखते हैं। इस तरह से 6 कैरेक्टर्स हमें दिखाई पड़ते हैं जो कि कंबाइन करते हैं टोटल पेंटिंग में, जहां पे 6 कैरेक्टर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको भी हम कोई रिलेट नहीं कर पाते कि कोई पर्टिकुलर उनका प्ले है। और अगर गौर से देखें तो किसी भी प्ले में ये सीन, इस तरह का जो पोस्चर, इस तरह का जो एंगल है, which you can see only if you are sitting in the wings। आप ऑडियंस में बैठ के पूरे ग्रुप का साइड व्यू नहीं पा सकते। अगर आप विंग्स के अंदर बैठे हो then only you can see that। इसी पूरे तक he was experimenting with his painting, how far it can be taken। जो लिमिटेशन था पेंटिंग का सदियों से, हजारों साल से, उससे अपने को लिबरेट करने का, उससे पेंटिंग को लिबरेट करने की एक सयास कोशिश है। इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो टैगोर की पेंटिंग में है, दैट इज द व्हेन वी यूज दिस वर्ड स्पेस, व्हेन वी यूज दिस वर्ड लाइन। जब हम लाइन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द ज्योमेट्री में लाइन का मतलब कुछ होता है, बट व्हेन यू यूज दिस वर्ड इन पेंटिंग तब लाइन का मतलब कुछ और होता है। लाइन इन पेंटिंग इज एक्चुअली द स्पेस, एंड यू विल फाइंड इन टैगोर्स पेंटिंग द ब्यूटी ऑफ दिस स्पेस व्हिच अदरवाइज वी थिंक वी कॉल इट एज अ लाइन। मैं उस ट्रांजिशन को दिखाना चाहता हूं। व्हेन वी सी दिस थिंग, इट इज एक्चुअली अ स्पेस ट्रैप्ड इन बिटवीन 2 black patches। It's clear, it's nothing to be, I mean, it doesn't need any explanation। पर इसको अगर नैरो करें तो ये नैरो स्पेस हो जाए, but further you narrow it, and ultimately when you reach to this point, there's a line। This is the transition from space to line, and that is the beauty of the Tagore's painting, because in this painting you find, which I was talking, कि इसमें आपको लाइन दिखाई जो पड़ा वो दरअसल स्पेस है। ये लाइन जो है, इट इज नॉट ड्रॉन विद व्हाइट कलर, इट इज द एरिया विच इज लेफ्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द पेंटिंग। इसके स्काई का जो कलर है उसको बनाया, जो बिल्डिंग का कलर है, आर्किटेक्चर का जो कलर है उसको बनाया, लीविंग बिहाइंड द व्हाइट स्पेस। एंड नाउ ऑनवर्ड जो भी पेंटिंग हम टैगोर का देखेंगे, चाहे इस टॉप में या बाहर भी, जरा इसको गौर कीजिएगा, बिकॉज दिस फीचर हमें इंडियन हिस्ट्री में नहीं मिलता है। And very recently we see this kind of experimentation of this space in the works of Raza। रजा साहब के वर्क में 2 कलर पैच के बीच में व्हाइट स्पेस छूटा हुआ है, like this व्हाइट लाइन छूटा हुआ है एक्चुअली द स्पेस। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया, इट इज वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। इसी तरह जो मैंने कहा कि ड्रामेटिक
और उस ड्रामा का कोई नोन ड्रामा के साथ कोई रेफरेंस नहीं। ड्रामा इज emerging out of the painting itself. It is not that drama is ending at this painting. ऐसा नहीं कि राम लक्ष्मण दोनों रावण को मार रहे हैं, it's a drama ending at that painting. But here we find that it is an open-ended painting. आपके लिए है to create a drama, to feel the drama in this painting. कोई रेफरेंस नहीं है, पर मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगता है ये पेंटिंग, बिकॉज यू कैन सी जो बेड बना है वो एक एनिमल के शेप का भी है। और रविंद्रनाथ टैगोर ही मेड ए फिल्म आल्सो, सो वी हैव गॉट द रेफरेंस। पुजारिनी का एक फिल्म था जो नोटी पूजा से बना था, एंड इट्स जस्ट अ रेफरेंस। नाउ अगेन हियर वी फाइंड अ डायलॉग। वी डोंट नो दिस पीपल, वी डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग, आपस में क्या बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, पर इसमें व्हाइट लाइन आप देख सकते हैं और इंटेंसिटी देख सकते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स का, कि एक्चुअली वो जो बात कर रहे हैं वो लग रहा कि दे आर वेरी इंटेंस। इसी तरह एक वेरी अफेक्शनेट पेंटिंग, इसमें भी व्हाइट कलर का यूज नहीं है, वो स्पेस को ही उन्होंने यूज किया। दिस इज डांसिंग देयर, यू कैन सी द फ्लो। जब डांस के ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं तो यू कैन सी किस तरह वो रिदम को हैंडल करते हैं। एक और पेंटिंग आगे दिखाएंगे जिसमें आप पूरा वो मूवमेंट देख पाएंगे। एंड दैट्स दिस पेंटिंग। इससे पूरा मूवमेंट जो साड़ी का जो है इसका पूरा मिला के एक जबरदस्त कॉम्पोजिशन है। और ये कहते इसको दिखाते हुए जब हम कहते हैं कि टैगोर ने कहीं आर्ट का क्लास नहीं अटेंड किया था, ये वाज सेल्फ मेड, तो सेल्फ मेड का मीनिंग समझ में आता है। And this is a wonderful composition. इसमें जितनी भी एक्टिविटीज दिखाई पड़ती हैं हमें, जहाँ जहाँ अदर देन द फैक्ट जहाँ जहाँ व्हाइट है वो कैनवस का छूटा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पोर्शन ब्लैक किया गया है। पर इसके अलावा जो पूरा ट्रीटमेंट है, जो बैकड्रॉप है, एक सिटी स्केप का आउटलाइन दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे एक ब्राउनिश स्काई है और उसके सामने समथिंग इज हैपनिंग जो ड्रामेटिक जरूर है, बट वी डोंट नो द रेफरेंस। बार बार हमको हमारे उनकी पेंटिंग्स में हमें ये ड्रामा दिखाई पड़ता है, जिसका रेफरेंस कहीं बाहर से नहीं बल्कि पेंटिंग के अंदर से इमर्ज कर रहा है। इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट। एंड फाइनली स्ट्रेंज क्रिएशन। He created something strange. जैसा कि हम जानते हैं कि टैगोर ब्रह्म समाजी थे, एथीस्ट नहीं थे, तो ब्रह्म समाजी थे, वो किसी आइकन या गॉड वगैरह को विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए क्रिएशन का मतलब क्या था, ये समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि जो पूरा यूनिवर्स है, इफ यू बिलीव जे पूरा यूनिवर्स को किसी ने बनाया है, अगर उसने 10 चिड़िया बनाई या 3000 स्पीशीज ऑफ बर्ड बनाया है, टैगोर has created the bird as a 3001 bird. You can see, if you see the bird, you can relate that this is a bird, but you cannot relate with any particular bird like ये कौन सा है, ये crane है या sparrow है, you can't make it. Everywhere we find that he has got the urge to create something, not to recreate, not to copy anything that has already been done. नेचर का कोई चीज को सामने बैठा कर उसको कॉपी करना, ये उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्रिएट किया। तो उसी लिए इसमें बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वेरी पोएटिक मैनर। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल अबाउट हिज एक्सप्रेशन, बिकॉज एज सच जो पोएट होगा वो अपना पोएटिक डिस्क्रिप्शन देगा कि इमेजिनेशन से कैसे एक इमेज का फॉर्म होता है। पहले यू इमेजिन सर्टेन थिंग, देन इट कम्स इन योर पेंटिंग। और इसको आप देख सकते हैं कि एकदम इस बर्ड को हम नहीं पहचानते हैं, बट इट्स अ बर्ड, इसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। When we enter the section of bird, तब हम लोग इसको और भी डिस्कस करेंगे। These are the creatures जो normally we don't see around us. लगता है कि prehistoric animal है, पर with a profound freedom उन्होंने इसको रिक्रिएट किया, उन्होंने अपने पेंटिंग में इसको क्रिएट किया। बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग
after seeing this strange creation, we can divide his work broadly into two sections. One is geometry, another is lyrical. There are some paintings which are geometry based and other paintings are lyrical. Now we'll quick see the work जो कि geometric pattern में है. इसमें जाहिर है कि उस समय के वेस्टर्न आर्ट का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है. This what we have already seen. जिसमें कि पूरा geometrical lines दिखाई पड़ना straight line. The second is lyrical. Lyrical काम में भी abstract expressionism का असर दिखाई पड़ता है. But even we don't go to that academic part of the painting. इसमें lyric जो rhythm है वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई पड़ता है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. वो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं इसमें rhythm है. और this is a complete painting, wonderful work. इसमें भी वो white line आप देख सकते हैं, which is characteristic of Tagore work. And now come to the birds. As I was telling you, the bird जो है, ये कंपनी स्कूल का बर्ड है. कंपनी स्कूल के समय बर्ड बनाया गया है. पर्टिकुलर ये बर्ड कहाँ मिलता है, उसके और कैसा देखने में होता है, इसके लिए आर्टिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया गया, आर्टिस्ट ने बनाया. बट विद दैट, जैसे मैंने कहा कि इंडियन आर्ट में इंडिपेंडेंटली एक कैनवस में, एक रेक्टेंगुलर कैनवस में एक कैरेक्टर, सॉलिटरी कैरेक्टर एज अ बर्ड आया, ये शायद पहली बार हुआ. These are the company school bird just before Tagore started painting. And now we see the Tagore's bird. I mean, the अकेले बर्ड जो है वो पूरा कैनवस में अकेले है और सॉलिटरी उसका एग्जिस्टेंस है. एज ए हीरो और ए सेंट्रल कैरेक्टर वी सी द बर्ड. और टू द एक्सटेंट वो कॉमिकल भी कर ले जाते हैं. And same with the flowers also. We don't find flowers in Indian art. और ये कंपनी स्कूल का फ्लावर है. इसमें अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे इट्स एक्चुअली नॉट द प्लांट, इट्स ए ट्विग. एक छोटा सा पोर्शन ऑफ प्लांट है. जो लोग बॉटनी के स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पे, इनको पता है. तो हर्बेरियम कलेक्शन में एक पोर्शन ऑफ प्लांट काट के हम लोग रखते थे. जब कंपनी स्कूल की पेंटिंग में देखते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज द प्लांट बट द पोर्शन ऑफ द प्लांट इंडिपेंडेंटली कंपोज्ड इन ए पेंटिंग. टैगोर के वर्क में स्ट्रेंजली उनके जितने फ्लावर्स हैं वो इसी तरह आते हैं. कहीं से पेंटिंग के बाहर से ओरिजिनेट करते हुए पेंटिंग में एंटर करते हैं. जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन होता है उससे हट के दिखाई पड़ता है. ये आप देख सकते हैं. इसमें जो है एक पोर्शन ऑफ द फ्लावर, एक ट्विग जो है वो काट के उसको रख के उन्होंने बनाया. इट इज नॉट द यूजुअल व्यू ऑफ ए फ्लावर और ए ट्विग और ए प्लांट. इस तरह से फ्लावर्स को देखने के बाद we come to the final point of this talk, that's the composition. शायद आर्टिस्ट के लाइफ में इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती. यही उसको बताता है कि कहाँ पे पेंटिंग उससे कंप्लीट हुई, कहाँ पे मैं देख के कह सकता हूँ कि पेंटिंग क्यों इनकम्प्लीट है. आप कह सकते हैं कि ये ओवरडूइंग है. जो भी असेसमेंट होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पोजिशन बताता है. नाउ लेट अस सी द टैगोर्स कॉम्पोजिशन एंड द ब्यूटी ऑफ द कॉम्पोजिशन. क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उसके रेलेवेंस के लिए हम आज इकट्ठे हुए बात करने के लिए. बिकॉज जब वो पेंटिंग कर रहे हैं तो कितना वो सीरियस है, ये हम देखना चाहेंगे. इट्स अ पेंटिंग, द फेमस पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड ऑफ टैगोर बाय टैगोर. इसमें आप गौर करेंगे तो यू कैन फाइंड द इंडिपेंडेंट जोन्स. और वो जोन इस तरह से है. एक आपको मदर एंड चाइल्ड मिलेगा. मदर का फेस है और चाइल्ड का बॉडी है. बट इफ यू सी दैट कैसे इसको हाईलाइट करना है, द फर्स्ट स्टेप ही डज, वो उसके जो ड्रेप है, वो साड़ी जो है उसको वो बनाते हैं. उसमें लाइंस हैं, लाइंस, फाइन लाइंस ड्रॉ करते हैं. देन ही यूज सर्टेन पैचेस टू क्रिएट अ पैटर्न. और तब भी हम देखते हैं कि मदर का फेस और चाइल्ड का बॉडी जो है वो सामने नहीं आ रहा. देन वी सी दैट व्हेन यू पुट अ ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, जो astonishing है, usually we don't see it serves the purpose of the shadow. Shadow against a single source light
जो कि प्राइमरीली उस बच्चे और बच्चे की माँ को लाइट कर रहा है। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि बच्चे का हाथ जो है माँ के लैब के ऊपर किस तरह रखा हुआ है। दैट फाइन थिंग हैज बीन नोटिस्ड। और उसको फाइनली जब वो बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं तो पूरी पेंटिंग की जब भी आप देखेंगे तो आपकी नजर सबसे पहले मदर एंड चाइल्ड पर पड़ेगी। देन यू गो टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द पेंटिंग जिसने कि इस पेंटिंग को एक लिफ्ट किया है। एक और पेंटिंग हम देखते हैं जिसमें एक सिंपल है, इट्स फ्लावर, ऐसा कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जहाँ पे भी कॉम्पोजिशन का चैलेंज। बट यहाँ चैलेंज इसलिए ये है कि probably he wanted to show the softness of the flower. Now to the extent that इतना soft है कि उसके अंदर उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। We don't find any line, I mean the complex कोई line इसमें नहीं है। Instead अगर ये subject है, he has not worked on the subject. Instead he has worked on the background. Background में इतना काम किया कि इतना cross hatching है, इतना color है, उसके presence में ये जो बीच का जो flower है इतना सॉफ्ट और अपनी आइडेंटिटी लेके सामने आ रहा है। सो हियर वी एंड द टॉक और मुझे लगा कि आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. That was a very interesting presentation. Ladies and gentlemen, we are now open for any question and answer session. If you have any questions, please feel free to ask. Anybody, any question? Being an artist, I know. Please. Being an artist, I know how difficult to do one painting when you leave white that जैसे वो पेज है या जो भी सरफेस है वो वैसे ही रख के then you paint on it. So it's really difficult task. So जब भी मैं वो पेंटिंग्स देख रही थी टागोर ने जो किए हैं और उसमें वाइट स्पेस छोटा है, वहाँ पे मुझे कहीं पे भी लाइन नहीं दिखी। सो इस पे आप कुछ और तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज देना चाहेंगे? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। क्योंकि मैं एक बात कहना मैं इसमें भूल गया कि एक्चुअली वाइट स्पेस का जो मैजिक है, व्हेन यू गो बैक फ्रॉम दिस प्लेस, आप जरा गौर से इनको देखिएगा, अमृता शेरगिल की पेंटिंग देखिएगा। देयर आल्सो यू फाइंड द मैजिक ऑफ द वाइट स्पेस, बट देन शी हैज यूज्ड द वाइट कलर। बट व्हाई आई रेफर टू दीज टू थिंग्स, क्योंकि इंडियन आर्ट में इस वाइट स्पेस का जो चैलेंज है, जो आपने अभी कहा कि बीइंग एन आर्टिस्ट यू फेस दैट चैलेंज, ये बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है। और जो वाटर कलरिस्ट जो वाटर कलर करते हैं उनको ये पता है कि वाइट स्पेस कैसे छोड़ा जाता है। जो हाईलाइट्स होता है, जहाँ पे लाइट आया है, उसको दिखाने के लिए यूजुअली दे लीव दैट स्पेस एंड अल्टीमेटली व्हेन यू फिनिश द पेंटिंग तो आपको वो हाईलाइट एरिया जो है, जो लेफ्ट ओवर एरियाज है, वो आपको वाइट दिखाई पड़ता है। सो व्हाई नॉट यूजिंग द वाइट ऑफ द कैनवस और वाइट ऑफ द पेपर। तो इस अप्रोच को इन्होंने क्या किया, जो ब्यूटी ऑफ टैगोर है, टैगोर यूज दैट स्पेस इनटू लाइन। और खाली एक पेंटिंग में नहीं, टोटल उनके वर्क में बार बार देखने को मिलता है। वंस यू आइडेंटिफाई दैट ब्यूटी ऑफ दैट लाइंस, अब आप जब टैगोर की पेंटिंग देखेंगे तो आपको अलग मजा मिलेगा। तो ये है कि आप अमृता शेरगिल के वर्क में भी दैट वाइट स्पेस दिखेगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा पीरियड है इसमें कि किसी ने गौर नहीं किया, पर अगेन रजा साहब के वर्क में वो वाइट स्पेस दिखता है। पर ऐसा नहीं, यूरोपियन अमेरिकन आर्टिस्ट में भी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के समय में कई आर्टिस्ट ने वाइट स्पेस का इस तरह इस्तेमाल किया। इट इज नथिंग न्यू फॉर टुडे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1928. इट वाज रादर अनहर्ड ऑफ थिंग। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? It's just amazing to see all these works and hear about his practice, which one didn't know anything about, not to such an extent. So thank you for that, and thank you to SAMVAAD, and I hope we have more such programs. Sure, I would love to. Very enlightening. Because problem ये है कि टैगोर के बारे में
हम लोग इतने ज़्यादा उनकी कविता, उनकी पोएट्री और वो कर्नाटक और उनके गीत, रविंद्र संगीत, स्पेशली इन द बंगाल, उसके साथ परेशानी है कि दे ओन टेगोर एज इफ. द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू ओन समबडी फॉर सम टाइम ही बिकम्स अ गॉड. तो फिर वो आदमी के बस की बात नहीं होती. मेरे जैसा आदमी जो 42 ईयर्स से पेंटिंग कर रहा है, टेगोर के बारे में मैं खाली 10 साल पहले, 12 साल पहले जान पाया, या मैक्सिमम 15-16 साल पहले, जब शांति निकेतन ने उनको फ्री किया. शांति निकेतन जो था, टेगोर वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ शांति निकेतन. अगर आपको गाना भी गाना है तो यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम शांति निकेतन. तो पेंटिंग्स बाहर नहीं है. आज जब क्रिस्टी ने उनकी पेंटिंग्स नीलामी की यूरोप में, जब 11 करोड़ रुपीस और इतना रुपया आया, तो लोगों ने कहा देखिए भाई पेंटिंग कैसा है. हमने इंडिया में भी उनको पेंटिंग को एज ए पेंटर उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनको इज्जत नहीं दी. टैगोर ने अपने एक लेटर में लिखा है कि आई एम लीविंग बिहाइंड माई सॉन्ग्स फॉर माई कंट्रीमैन बट पेंटिंग फॉर द यूरोपियन. उनको भरोसा था कि इस हिंदुस्तान में उनकी पेंटिंग बस नहीं समझेगा, बिकॉज देयर वाज नो स्टोरी, नो राम, नो लक्ष्मण, नो बडी, तो कौन समझेगा. पर आज जो है, जो जनरेशन, जो हम लोग हैंडफुल ऑफ क्यों ना हम लोग बैठे हुए यहाँ पे, नाउ वी नो अबाउट, वी हैव सीन सो मेनी वर्क, वी हैव डिस्कस समथिंग. कई पॉइंट आप लोग एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि एग्री डिसएग्री का सवाल नहीं, बिकॉज टैगोर के बारे में डिस्कशन शुरू होना चाहिए. वी शुड हैव मोर फ्रीक्वेंट सच सेशन जिसमें कि टैगोर को फोकस करें, बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड टैगोर वी अंडरस्टैंड पेंटिंग. वंस वी अंडरस्टैंड टैगोर वी अंडरस्टैंड द power of resistance. Once we understand Tagore, we know the need of resistance also. That is the time when we should stand up and resist against the force with the kind of strength which Tagore had. Very timely, I would say. Thank you. We have time for one more question. So, anybody, any other question or comment? Comment would be that, like you mentioned it, as an artist, again we have been looking at n number of art, but sir's explanation again opens our eyes to looking at each art from a different perspective. Thank you very much. Completely agree to your statement. So, with this, I'll proceed with my vote of thanks. So, I'm sure everybody agrees this was a wonderful talk show by Mr. Ashok Bhowmick. And I would like to thank him for accepting our invitation and giving us the opportunity to know more about Rabindranath Tagore's contribution in Indian art and sharing his knowledge despite his busy schedule. We really appreciate that. I would also like to thank Sunaina Kejriwal, Director of Kamal and Bajaj Art Gallery, for supporting our initiative by collaborating for art talks. I would also like to thank Mr. Sandeep Prabhakar for all his support and guidance. And at the end, I would like to thank you all, wonderful audience, for your presence and interest you have shown in SAMVAAD. And we look forward to your support in all our future activities. So, thank you very much. Have a pleasant evening.